ہاں ٹھیک اچھا آگے آنر آ گئے ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ رحیم شاہ صاحب میرے بہت سے دوست بھی ہیں اور ہماری جو ہے وہ گفتگو جب شروع ہوتی ہے تو بس وہ ختم ہی نہیں ہوتی اور بہت عرصے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے. تو بہرحال جناب آپ دیکھ رہے ہیں کوکا کولا ہر لمحہ پرجوش اور ہمارے آج کے مہمان ہیں رحیم شاہ صاحب. تو معصومانہ میچ کا آغاز کر سکتے ہیں سر؟ یاد آ اجازت باؤنسر سے آغاز کریں. میری جان گلی ڈنڈے سے کر لے. اچھا باؤنسر سے لے لے چاہے سپانسر سے لے لے. ہاں یہ زیادہ اچھا ہے. اسپانسر سے یاد ہے ایچ ایس جی اسٹریز کا بہت بہت شکریہ. باؤنسر سے آغاز کرنے چلے. بڑے آپ نے معصومانہ انداز سے کہا آدھا بڑے ٹھیک ہے. شعر و شاعری سے دلچسپی ہے بڑی سننے کی حد تک ہے. اپنا فیوریٹ شعر سنا ہے؟ کیا ہے اپنا فیوریٹ شعر سنا ہے؟ اپنا فیوریٹ شعر؟ ہاں جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو. میرے دوست کا ہے. اچھا انور صاحب کا. ہاں ہاں کہ پاک ایسی بھی نہ بینائی دے, پاک رب کی ذات, پاک ایسی بھی نہ بینائی دے, ہر ہنسی میں خدا دکھائی دے. عشق وہ ہو کہ دیکھوں سب کو مگر کچھ نہ تیرے سوا دکھائی دے. آداب آداب. اب یہ بتائیں ہاں اس طرح ہاں ایسے اشعار کتنی مرتبہ سنائے ہوں گے لائف میں؟ یار میں نے آپشن دے دوں؟ آپشن دے دو. 800 1200 یا 25,000؟ خیر آج پہلی بار رہنے دیں یار. رہنے دو پھر. تو رحیم شاہ نے کبھی اشعار نہیں سنا ہے؟ نہیں یعنی اس طرح آپ نے کہا اس طرح. اس طرح کا مطلب تھوڑی کہ علامہ پرجوش کے سیٹ پر مطلب دو بدو بیٹھ کر کسی کو اشعار. اب میں مزید تفصیلات بتاؤں گا یار؟ میں بتاتا ہوں. میرے کو آپ خود بتا دینا. میں نے ایسے نہیں کرے نا. ہاں میں نے بالکل سنا ہے. بہت بار؟ نہیں بہت نہیں, کچھ بار. تم سے تھوڑا کم. اچھا تو پھر اندازہ اب تم اندازہ لگا لو, اس میں سے 20% لیس کرو. اب مجھے نہیں پتا آپ کی معلومات کتنی ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن یہ کہ رحیم شاہ نے بہت محنت کی, بہت برا ٹائم, بہت سٹرگلنگ فیس دیکھا یہاں. یار اس کو برا نہیں بولنا چاہیے, اس کو اچھا بولنا چاہیے. سٹرگلنگ فیس تو کیسے؟ ہاں جو آدمی سٹرگل نہیں کرتا وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور سٹرگل اچھی چیز ہے, انسان کو سٹرونگ کرتی ہے. ٹکا کے لیکن محنت کی ہے. ٹکا کے یعنی والد صاحب کیا کرتے تھے؟ والد صاحب میرے میں نے ساری زندگی ان کو مسلح پہ ہی دیکھا ہے. ہاں جی ہاں مسلح پہ دیکھا ہے, یا پھر جو ایک عام آدمی, بلکہ عام سے بھی جسے آپ کسی کیٹیگری میں نہیں لاتے ہیں. میرے والد صاحب ایک مزدور آدمی تھے, ایک سبزی کا ٹھیلا لگانے والے تھے. رحیم شاہ کے والد سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے تھے. لیکن دوسری بات سنیں, کمال. مالی طور پہ ہم سے کمزور آدمی بظاہر کوئی نہیں تھا, لیکن خاندان ہم سے اونچا کوئی بھی نہیں تھا. اچھا وہ کیسے مطلب؟ یعنی اگر میں اپنے نام پورا لوں تو سید محمد رحیم شاہ ترمیزی. کیا بات. یہ قدر مجھے اللہ نے دی اور اللہ کے رسول نے دی. ہاں مالی طور پہ ہم اتنے کمزور تھے, اس میں کوئی شک. ماشاءاللہ اتنا لمبا نام آئی ڈی کارڈ پہ تو پورا نہیں آتا ہوگا. یہ جہاں آتا ہے وہاں پورا ہی آتا ہے. تو پہلے تو کبھی کبھی غم تھا. پہلے تو کبھی کبھی غم تھا. اس گانے نے آپ کی ظاہر لائف بدل دی. بالکل سب کچھ بدل دیا. واقعی پہلے تو کبھی کبھی غم تھا, یا رحیم شاہ نے دیار عشق میں عشق کے راہ میں بہت بیڈ فیزز دیکھے ہیں, رونا دھونا, عشق فلاں فلاں, یہ سب ہوا ہے, بہت ہوا ہے لائف میں؟ نہیں عشق تو یہ سب فضول باتیں, اس وقت مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. لیکن ہاں پتہ بھی نہیں تھا, ہو گیا یار. عشق وشق یہ محبت یہ پتہ نہیں لگتا, یہ ہو جاتا اور وہی اچھا ہوتا ہے. اور ہوا وہ ہوا بھی. کیسا تجربہ ثابت ہوا؟ لیکن یہ گانا اس کی وجہ نہیں ہے. نہیں میں نے کب کہا گانا میری غربت کی وجہ ہے. اچھا گانا میری غربت کی وجہ ہے. پیسے کمانے تھے یار؟ پیسے یا پیسے نہیں تھے اس لیے گایا, کیا مطلب؟ نہیں غربت کی وجہ ہے. اگر سچ صحیح معنی میں سچی بات, دل کی بات بتائیں, خدا کی قسم, جو بھائی بیٹھے ہیں آپس میں. جب میں نے گانا جب شروع کیا نا تو مجھے امید بھی نہیں تھی کہ میں آؤں گا. میں نے صرف خواب دیکھا تھا یار گانا آ جائے گا تو چلو یار کہیں فلائی کر لیں گے. تو اپنے باپ کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا سعودیہ میں, تو ہم نے یہ سوچا چلو وہ سعودیہ گئے, ہم سعودیہ سے ہوتے ہوئے کہیں لنڈن چلے جائیں گے, یورپ نکل جائیں گے. تو پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اتنی پاسپورٹ کی چھپیاں ہیں میرے پاس ابھی. کیا اللہ نے کہا تم ایک بار جانا چاہتے ہو, چلو لنڈن چھوڑ دو, میں تمہیں ساری دنیا گھماتا ہوں. کیا بات, کیا بات. گانے کی ریکارڈنگ, اس کی ویڈیو, ماڈل کو پیسے دینے ہیں جس کو. ہاں یہ آپ سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں آپ سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل. ہاں تو بتائیں نا لوگوں. یار میں حالانکہ آپ نے مجھے نہیں بتایا, لیکن میں معلوم ہے مجھے. اچھا نہیں میں لوگوں کو اس لیے پہلا گانا کبھی پہلے تو کبھی غم تھا, جو صاحبہ اس میں ایکٹ کری, ظاہر ہے ہر ماڈل کی ایک فیس ہوتی ہے,
कैसे अरेंज की रहीम शाह ने? अच्छा, सबसे पहले तो 12,000 रुपए का वो वीडियो हुआ था। 12,000 रुपए का वो वीडियो हुआ था और उसमें लड़की को देने के लिए मुझे कहा था कि यार इसको 2,500 रुपए देने उस वक्त। सही है। ये 1997 की बात है, 1997 और अर्ली 90। मैंने इतना सब्र किया है, शुक्र है कि अल्लाह है साथ। माशाल्लाह। खैर वो पैसे कोई देने वाला नहीं था, बाकी लोगों ने बड़ा अच्छा किया था। हाँ। तो पैसे देने के लिए फिर उन दिनों में आपको पता था कि लोग जाते थे, ब्लड डोनेट करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन बेचते भी थे। उन दिनों में तो किडनी भी बिकती थी मेरे ख्याल में। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार चले जाओ वहाँ, तो दे के आया मैं। तो आज वो Blood जो की डॉक्टर bottle था उसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा, आज भी जानते हैं? वो इस वक्त प्रोफेसर है ओहो। और इस वक्त वो लंदन के अंदर है। तो उसने मुझे जब ब्लड ले लिया तो कहने लगे यार ये पैसे पकड़ लो, और दूसरा ये कि तुम ये इस 500 रुपये से कोई जो ना कुछ सेब वेब कुछ अनार शनार कुछ खा लो। खाओ कुछ। मैंने कहा नहीं। तो वो बेचारा हाउस जॉब कर रहा था, तो उसके पास वो केला पड़ा हुआ था, कह रहा अच्छा ये तो खा ले, मर जाएगा नहीं तो। ऐसी पोजीशन थी। खून की बोतल देकर, खून बेचकर पैसे दी। तो दूसरा रास्ता नहीं था। नहीं, इसका मतलब भाई ये इसका एक एंगल ये कि हम स्ट्रगल बताएं, इसका मतलब ये नहीं है, ये भी आप कह दें कि आजकल के जवान बच्चे बच्चियां ये काम इसका शुरू कर दें। इसका मतलब ये नहीं है भाई। मैंने सिर्फ ये बात हाँ। मैं इसीलिए बात बताई कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। अल्लाह ताला आपके अंदर इतना कुछ दिया हुआ है कि उससे आप बहुत सारा काम ले सकते हैं। हाँ, स्ट्रगल करते रहे, सही है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें भैया, कल सुबह कोई ना कर देना भाई। हाँ, ये बड़ी बहुत सही अच्छा बात। रहीम भाई, इसलिए आपका ये गाना ओ पॉजिटिव हुआ है। भाई आपने भी गाना गाया था एक, तो वो हैंड माइक, बासित मुझे हैंड माइक दीजिएगा। मैंने आज तक जो है ना इस प्रोग्राम में ये काम नहीं किया, लेकिन रहीम शाह साहब आपने माँ पर जो कलाम गाया है ना, वो रोंगटे खड़े कर देता है। मैंने भी आज तक ये काम नहीं किया, मेरे साथ किसी ने नहीं गाया। तुम भी गाओगे मेरे साथ? मैं गाऊंगा तो मजा खराब हो जाएगा। मुझे क्या अरे है? मजा दोबाला होगा आपका, ट्राई तो करें ना। मैं हस्बे तौफीक साथ दूंगा। नहीं नहीं, हस्बे तौफीक क्यों? हाँ जी जी मायना ना, नीचे नीचे थोड़ा और नीचे दो। क्योंकि ये सब लाइव हो रहा है, मैंने पहले नहीं बताया था इनको कि ये काम पियानो करना पे, है। पियानो पे। ये मुझसे पूछते रहे, मैं कहा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ क्या बात। मुझको झुलाओ ना झूला। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। ओ माँ मुझको रुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। तनननना रे ना रे ना ना, तनननना रे ना, ओ तनननना रे ना, ओ तनननना रे ना। कोई अपने जज्बात पे काबू रख सके तो आपका साथ देना है इस गाने। बासित भाई रो रहे हैं, सखावत रो रहा है, और बड़ा डीठ हूं मैं, इतना सख्त हूं ना। माँ क्या है, क्या है? रहीम शाह से पूछो। जो मेरे अंदर है वो मेरी माँ है। जो मेरे रहीम अंदर शाह है के ना, लिए उसकी माँ क्या है? मेरे लिए मेरी माँ
जिस जन्नत का वादा है उससे बढ़कर है मेरे लिए, क्योंकि वो जो है उसके पैरों के नीचे। सोचो, जो इसको पकड़ लेगा, इसके पैरों के नीचे जन्नत है, तो ऊपर क्या होगा ये किसी को पता ही नहीं। काश मेरी माँ मुझे और समझ जाए यार, अंदर से। बादामी खुल के बोल रहा हूँ। क्या समझाना चाहते हो अपनी माँ को, बताओ। अक्सर अक्सर होता है, मैं भी अपनी माँ से बहुत सारी बातें, हालांकि माँ है लेकिन फेस में नहीं कह सकता, कह ही नहीं सकता। बट कहें यार, क्या 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 व्हाट डू यू मीन जब आप कह रहे हैं काश मेरी माँ मुझे थोड़ा और समझ जाए यार, क्या मतलब है इस बात? वो समझ गई है, समझ जाए बस, वो समझती है ना। चेंज कर यार। एक ऐसा रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है। मैं सबसे पहले अपने लिए और फिर सबके लिए दुआ करता हूँ कि जिन जिन की माएँ जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी माओं की खिदमत का सही हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन। और जिनकी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मैं अपनी माँ से कहता हूँ आज, क्योंकि सर कह रहे हैं ना ये कि बहुत सारी बातें माँ होती है लेकिन कह नहीं, मैं अपने बाप से नहीं कहता, बहुत सारी बातें सब उनके सामने होती हैं, कि मैं अपनी माँ से कहता हूँ आप लोग अपनी अपनी माँओं से कहिएगा। जो सामने कह सके वो सामने कहे, जो नहीं कह सकता वो कोई किसी और जरिए से कहे, लेकिन कह दे कि आई एम सॉरी, आप कमाल हैं और हम वो हक अदा ही नहीं कर सकते जो आपका है, तो ये हाथ जुड़े हुए हैं, हो सके तो माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी एंड आई लव यू। और ये पैगाम सबकी तरफ से सारी माओं के लिए बहुत सारी तालियां। तो मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। और घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेके दर पे आ जाती है माँ। और जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है, गीले पे सो जाती है माँ। ममता क्या चीज है, और प्यार कहते हैं किसे, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। एक वक्फे के बाद दोबारा आ जाओ। ब्रेक में लोगों के मैसेजेस, कॉल्स, आंसू। बासित भाई कुछ कहना चाह रहा है? जी बासित भाई। वसीम भाई, एक बात कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के सबको, कि ये जो हम मदर्स डे और फादर्स डे बनाते ना, हाँ, ये रोज़ाना हमारे लिए होता है। सही बात। मदर्स डे भी रोज़ाना है, फादर्स डे भी है। अल्लाह के वास्ते जिनकी माएँ जिंदा है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लंबी उम्र दे। जिनकी वालदाएँ नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। लेकिन प्लीज़ रोज़ाना मदर्स डे बनाओ, रोज़ाना फादर्स डे बनाओ। उस जो दिन होता है ना, उस पर वो ना करो। That is so right. ये वाकई वसीम भाई अभी जो बात की बासत भाई ने, इस पे सबको अमल करना चाहिए। ये बाद में पता चलता है। अब मेरी वालदा नहीं दुनिया से जा चुकी है, मुझे अब उसकी कदर हो रही है कि काश मैं हो सकता, मैंने बहुत खिदमत की, लेकिन अभी मेरे दिल में है कि शायद मैं उतनी नहीं कर सका जितनी करनी चाहिए थी। तो जिनके पास है वो रोज़ाना ही मदर डे मनाए और रोज़ाना ही फादर डे मनाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। इन मौजूदात के बाद मेरे पास मजीद की बात करने की गुंजाइश नहीं रहती। सलामत रहें सखावत भाई, सलामत। आज का प्रोग्राम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा प्रोग्राम हुआ है। क्या बात है, मैं ये बिला झिझक सबके सामने बोल रहा हूँ। क्या बात है। वैसे भी अब भाई कितने शो में बैठते हैं तो बड़ा कंट्रोल करके बैठते हैं, लेकिन आज रहीम भाई माशाल्लाह कोई ख़ास रहमत है इन पे, इनके पीछे कोई दुआएं हैं, तो कंट्रोल नहीं आज हो सका।
तो आज दिल की बात सामने आ गई सबके, और बस दुआ कीजिए जिनकी वालदा नहीं है, अल्लाह मियां उनको जन्नत में जगह अता इलाहे फरमाए। आमीन। और जिनकी मौजूद है वो कभी मिस ना करे, वो जितनी खिदमत हो सके वो कर ले। वसीम भाई बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता जब कदर होती है बंदे को। एक काफ़ी टाइम से बड़ा बर्दाश्त किया हुआ है, बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे बोलने में। देखिए, गलतियां होती हैं, माँ समझाती रहती है, बच्चे समझते नहीं हैं। सही है। वो समझते हैं बस वैसे ही टाइम ज़ाया बोली जा रही हैं, फजूल बोली जा रही हैं। लेकिन जब टाइम आता है तो फिर बंदे को समझ आती है। मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में एक आइडिया लगाया है, बच्चा हमेशा तरक्की करता है सिर्फ माँ की दुआ की वजह से। बिल्कुल। मैंने क्रिकेट खेली, मुझे पता है कि मेरी माँ ने कितना रात को जाग जाग के मेरे लिए पढ़ा है, और लोगों को बोलती थी कि मेरा बच्चा पाकिस्तान क्यों नहीं खेलता, इतनी मेहनत करता है। और उसके पीछे पढ़ाई, पता नहीं क्या क्या, मसल्ले में बैठना, दुआ करना, सब कुछ। तो माँ से बड़ी चीज़ तो कोई होती नहीं है ना। बस क्या बोल सकता है बंदा। ये तुमने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अच्छा ही किया है। अच्छा ही किया। बहुत अच्छा किया। अच्छा ही है। मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं। लेकिन बासित भाई ने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बोली, जी, सबसे बेस्ट प्रोग्राम हो, जबरदस्त। आपने जो गाना गा के काम कर दिया ना, और गाते हैं प्लीज, बहुत आला काम नहीं कर मैं दिया। नहीं गा पाऊंगा। प्लीज। बस भाई, मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सुनिए। कहें पहले कहें, मैं क्या जो बात करने चाह रहा हूँ। क्या कहें? हाँ, अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे हैं मेरे जिनकी माँ नहीं है। अगर किसी की माँ नहीं है तो ढूंढो उन लोगों को जिनसे तुम्हारी माँ प्यार करती थी, तो दुआ का सिलसिला वही होगा आपके साथ। एक बात हो गई तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, दुआ आपके साथ रहेगी। वो लोग ढूंढो, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसी को, अपने किसी मामा, फूफा, ताया को, जिससे आपकी माँ प्यार करती थी, उसकी खिदमत करना शुरू कर दो। ये तुम अपनी माँ की करो तो दुआ का सिलसिला नहीं टूटेगा। अच्छा, नंबर 1। इसमें एक चीज़ नंबर देखिए- भाई, मुझे बात कर। हाँ, ठीक है, बोलिए, Very, very बोलिए, sorry. हाँ, बोलो। फिर अगर हम सुबह शाम आजकल दुआ मांग रहे हैं ना, मुल्क की मईशत के लिए, इसके लिए, कारोबार के लिए, धंधे के लिए, तनख्वाह नहीं मिल रही, फंस गई है, आज से ये तय कर लो कि सबसे पहले जब दुआ के लिए हाथ उठाओ ना, तो सबसे पहले अपने माँ बाप को याद करो। उसके बाद जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा। ये मेरा दावा है, क्या ये बात। कंफर्म बात बता रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है। अच्छा, क्या बात है। ट्राई करने का। एक चीज़ देखें, ऐसी है ना अगर किसी भी बच्चे को तकलीफ होती है, उसके मुंह से सबसे पहले माँ का नाम निकलता है। ये एक कुदरती रिश्ता है। माँ के बगैर तो आपका, जो जिनकी माएँ नहीं है, वाकई उनसे जाके पूछें, जिस तरह अभी सखावत भाई ने बोला, अगर इन जैसे लोगों के पास बैठ के ज़रा माँ के बारे में ज़रा पूछ लेना, आप मिस कर रहे हैं, तो फिर जो समझदार आदमी है, बच्चा है ना, वो खुद ही समझ जाएगा कि माँ की कितनी वैल्यू है। सही है। एक जुमला शेयर करूं आज, कभी नहीं करा। जब परेशान होता हूँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत आती हैं। जैसे मैंने अभी 4 दिन पहले प्रॉब्लम थी, तो मेरी वालिदा हमेशा एक जुमला बोलती है, तोतले फिक्र ना कर, मैं हूँ। हाँ, मैं बचपन में तोतला था। हाँ। इस बहस को समेटते हुए आप जानते हैं ये मेरी क्या औकात है, मैं आपको क्या बताऊंगा जो उलमा का नाम है अल्लाह ताला की। ये तो बासित भाई अपनी बात बता रहे हैं ना, हम तो इंसान हैं, गुनाहगार हैं, ज़ाहिर है बहुत। हम क्या, अल्लाह ताला के नबी, और नबी भी कौन, जो अल्लाह ताला से कलाम करते हैं। कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर जाते थे, अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। जब वालिदा का इंतकाल हुआ, उसके बाद जब कोहे तूर गए, आवाज़ कुदरत आती, ज़ाहिर बात, आवाज़ कुदरत आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अब अपने कदम संभल संभल के रखना कोहे तूर पे, क्योंकि अब तुम्हारे लिए उठने वाले तुम्हारी जो माँ के हाथ थे वो तहे खाक हैं। नबी अल्लाह ताला का, अल्लाह उसे कह रहा है कि अब माँ नहीं है, इसलिए अब जरा संभल जाना। ये है माँ की दुआ की अज़मत। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे। तालियां बजा दें एक दफ़ा तमाम माओं को। ये भाई क्या जाते जाते ये हो सकता है, मैं चाहता हूँ, क्या बात है, मैं चाहता हूँ जाते जाते रहीम जरा सारा माहौल ही उस तरफ लगा, तू तो बह जा। नहीं सर, आई लाइक टू मेंशन वन थिंग। जी जी। सब मदर पे बात करें, मेरा कैरेक्टर ऐसा है, दुनिया में जितने भी लोगों का मॉम है, आप सबको कहना चाहूंगा, मॉम यू आर फैंटास्टिक, क्या फैंटास्टिक। मैं तो अब मैं क्या बात करूँ जाते जाते भाई। ये बताओ अमेरिका में क्या हुआ था? यार ये एक काम कर लेते हैं, आखिर हमारे पास जोड़ है, कितनी देर है हमारे पास, ये बता दें।
3 منٹ ہے ہمارے پاس. یہ ہو سکتا ہے آپ ہمارے پاس آئے رمضان میں, جنید بھائی ہوتے تھے اور ہم نے جو ہے مل کے ہم نے بہت سارے کلام بھی پڑھے ہیں, قصیدہ برودہ شریف پڑھا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم نے ماں کی بات کی ہے, وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں کوئی حمدیہ شعر سنا دے, بس ہم اس پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. کسی بھی حمد کا, نعت کا کوئی شعر سنا دیں, ہم بس اس پہ, کیونکہ اب میں اس ماحول کا بس میرا دل چاہ رہا ہے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ جو آپ سنانا